Good morning, students. Today, our class is on the for the each allotment of securities by company or allotment of shares by the company. Now, first topic is the condition of rules. Condition और rules क्या शर्तें होती हैं या क्या नियम है किसी भी सिक्योरिटीज को इशू करने के लिए. Under the Companies Act 2013, the following conditions or rules have been prescribed for allotment of securities by a company. कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किसी भी प्रकार की प्रतिभूति का निर्गमन करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन होना चाहिए. पहला है मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी न्यूनतम अभिदान. According to section 39 lays down that a company cannot make allotment of any securities offered to the public or subscription unless the amount is stated in the prospectus as the minimum amount has been subscribed and such payable on application for the amount so stated have been paid to and received by the company by check or other instruments. मिस कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 39 के अनुसार कोई भी कंपनी जो प्रतिभूतियों का निर्गमन करते समय अपने प्रविवरण में जो न्यूनतम अभिदान अंशों की संख्या निर्धारित की है और उन न्यूनतम अभिदान अंशों की संख्या पर जो प्रति अंश आवेदन की सीमा आवेदन राशि की सीमा निर्धारित की है, जब तक उसे प्राप्त नहीं हो जाता या तो किसी भी चेक के द्वारा या अन्य जो भी इंस्ट्रूमेंट जो संसाधन जो कंपनी ने उस प्रविवरण में बताए हैं. दूसरा मिनिमम अमाउंट ऑन एप्लीकेशन, आवेदन पर न्यूनतम कितनी राशि माफ होनी चाहिए. According to section 39 of the Companies Act 2013, the amount paid on application of every securities shall not be less than 5% of the nominal value of the securities or such other percentage or amount as may be specified by the Security Exchange Board of India, SEBI, by making regulations on in this behalf. यानी कंपनी अधिनियम 1913 के अनुसार कोई भी कंपनी अपने अंशों के निर्गमन करते समय उसकी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू के का कम से कम 5% राशि अथवा अन्य कोई भी प्रतिशत राशि जो सेबी के द्वारा अपने रेगुलेशन के तहत उसको कहा गया हो उससे कम नहीं रख सकता. तीसरी चीज होती है नॉन रिसिप्ट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड एप्लीकेशन मनी विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम. सेक्शन 39 lays down that if the stated minimum amount has not been subscribed and the sum payable on application is not received within a period of 30 days from the date of issue of the prospectus or within such other period as may be specified by the SEBI, the amount received on application shall be returned within such time and manner as prescribed. अर्थात धारा 39 के अनुसार कोई भी कंपनी अपने प्रविवरण निर्गमन करने के 30 दिनों के अंदर या अन्य कोई भी तिथि जो प्रतिभूति नियामक ने दी है उस दौरान अगर मिनिमम न्यूनतम अभिदान प्राप्त नहीं करता है तो वह कंपनी अपने आवेदन के बदले अंशों का आवंटन नहीं कर सकता और जो भी एक निर्धारित समय सीमा होगी उस निर्धारित समय सीमा में उसे
अब उन आवेदन की राशियों को वापस करना होगा। नेक्स्ट, सिक्योरिटी टू बी डील्ड विद इन स्टॉक एक्सचेंज। According to Section 40 of the Companies Act 2013, lays down that every company making public offer, before making such offer, shall make an application to one or more recognized exchange or exchanges and obtain permission for the securities to be dealt within such stock exchanges or exchange। अर्थात कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 40 के अनुसार कोई भी कंपनी अपने अंशों का जनता में निर्गमन करने से पहले किसी भी रिकॉग्नाइज पंजीकृत स्टॉक एक्सचेंज में उसको उन स्टॉक एक्सचेंज में कम से कम एक या एक से ज़्यादा में उन प्रतिभूतियों का लेन देन करने की अनुमति प्राप्त कर लेनी होगी। नेक्स्ट, ऑल एप्लीकेशन मनी इज टू बी केप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। According to Section 40, lays down that all monies received on application from the public for subscription to the securities shall be kept in a separate bank account in a scheduled bank and shall not be utilized for any purpose other than the following: A, the adjustment of the allotment of securities where the securities have been permitted to be dealt within the stock exchanges are specified in the prospectus, or B, for the repayment of monies within the time specified by the Securities and Stock Exchange Board of India received from applicants in pursuance of the prospectus, where the company is for any other reason unable to allot securities। जो भी आवेदन की राशि प्राप्त होगी एक अलग बैंक खाते में रखना होता है। यानी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 40 के अनुसार कोई भी कंपनी पब्लिक को ऑफर किए गए आवेदन से प्राप्त राशि को किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में अलग से खाता खोल के रखती है और निम्न पर्पजों के अलावा किसी अन्य पर्पस के लिए उस राशि का उपयोग नहीं कर सकती है। पहला, आवेदन प्रतिभूतियों का आवेदन करने किसी भी पहला है कि उन स्टॉक एक्सचेंज में विनिमय की जाने से परमिशन लेकर के अनुमति प्राप्त करके उन प्रतिभूतियों का आवंटन करने के लिए, और दूसरा, उन आवेदन से प्राप्त राशियों को अगर आप किन्हीं अन्य कारणों से अंशों का आवंटन नहीं कर पाते तो सेबी के गाइडलाइन के अनुसार उसे उनका पैसा वापस करने के लिए ही उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, कमीशन फॉर सब्सक्रिप्शन टू द सिक्योरिटीज। Section 40 lays down that the company may pay commission to any person in connection with the subscription to its securities, subject to such condition as may be prescribed। अर्थात कोई भी कंपनी धारा 40 के अनुसार प्रतिभूतियों के निर्गमन के संबंध में का जो नियमावली दी गई है उसके अनुसार एक निर्धारित राशि कमीशन के रूप में दे सकती है। So these are the conditions for the allotment of issue of the securities according to the Company Act 2013 and the guideline of the SEBI. The next topic is today's प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स निजी तौर पे कैसे आप अंशों का आवंटन करते हैं। तो मीनिंग इसकी, अकॉर्डिंग टू
private placement of shares implies issue and allotment of shares to a selected group of persons. Means an issue which is not a public issue but offered to a selected group of persons such as UTI, LIC, bank, etc. is called private placement of shares. अर्थात जब अंशों का निर्गमन आम जनता के अलावा किसी चुने हुए ग्रुप समूह को आवंटित किया जाता है जाए तो उसे हम प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं, निजी आवंटन कहते हैं, जिसमें सेलेक्टेड ग्रुप से आशय होता है जैसे यूटीआई है, एलआईसी है, बैंक्स है या किसी अन्य प्रकार की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर उनको हम शेयर्स का आवंटन करें तो वो निजी आवंटन, अंशों का निजी आवंटन कहा जाएगा। और इस प्रक्रिया में जो भी सेबी की गाइडलाइन होगी उसे आपको फॉलो करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट होता है लॉक इन पीरियड इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। अगर किसी सेलेक्टेड ग्रुप को सेबी गाइडलाइन के तहत निजी तौर पे अंशों या प्रतिभूतियों का आवंटन किया जाता है तो उन अंशों का हस्तांतरण आवंटित किए हुए व्यक्ति के द्वारा किसी में भी दशा में आवंटन की तिथि से 3 वर्षों के अंदर नहीं किया जा सकता। जो ये 3 वर्षों की रोक होती है इसे हम लॉक इन पीरियड कहते हैं। मीन्स इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स द allottees are not allowed to sell their shares for a minimum period of 3 years from the date of allotment. This period is known as a lock-in period. Now the accounting treatment related to private placement is similar to the public subscription in case of application and allotment of shares. जो लेखांकन प्रक्रिया होगी वैसी होगी जैसे हम प्रतिभूतियों का निर्गमन आम जनता को करते हैं, उसी प्रकार की लेखांकन प्रक्रिया यहाँ भी अपनाई जाएगी। दिस इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। नेक्स्ट इज स्वीट इक्विटी शेयर्स। Means sweet equity shares are those shares which are issued by the company to the employees or directors at a discount or consideration other than cash, providing know-how or making available rights to use intellectual properties. Right? Intellectual property rights include trademarks, copyright, patent, industrial design or any other such rights. मीन्स अर्थात सच स्वीट इक्विटी शेयर वो अंश होते हैं जो कंपनी अपने कर्मचारियों अथवा निदेशकों को रोकड़ के अलावा अन्य प्रतिफल के रूप में निर्गमित करते हैं। जैसे किसी भी प्रकार की तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए, राइट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के लिए, किसी भी प्रॉपर्टीज के लिए, और राइट्स इंक्लूड्स ट्रेडमार्क्स। राइट्स में जो आपकी प्रॉपर्टी राइट्स होती है उसमें ट्रेडमार्क्स है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, इंडस्ट्रियल डिजाइन है, ये सारी चीजें उसमें शामिल होती हैं। Next, conditions to be fulfilled for issuing sweet equity shares. According to Section 54 of the Companies Act 2013, स्वीट इक्विटी शेयर्स के निर्गमन के संबंध में जो भी शर्तें हैं उनका पालन किया जाना चाहिए। Company may issue sweet equity shares at a price lower than the nominal value of the equity shares, and in that case,
provision, section 54 of the Company Act 2013 relating to issue of shares at a discount shall to be followed. अगर स्वीट अंशों का निर्गमन नॉमिनल वैल्यू से कम पर निर्गमित किया जाता है अथवा डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, उससे संबंधित जो भी दिशा निर्देश है उसका छूट का सेक्शन 54 में उसका पालन होना चाहिए. Now, here is also a lock-in period. In case of sweet equity shares, sweet equity shares cannot be resold by their holder within a period of 1 year is called lock-in period. अगर स्वीट अंशों का निर्गमन किया जाता है तो उसका जो धारक है वो उन अंशों का हस्तांतरण आवंटन की तिथि से 3 वर्षों के अंदर 1 वर्षों के अंदर नहीं कर सकता. Now the accounting treatment is also the same as shares issued at public. यानी जिस प्रकार से आप जनता को अंशों का निर्गमन करते हैं और उस समय जो आप लेखांकन प्रक्रिया अपनाते हैं वही प्रक्रिया यहां भी अपनाई जाएगी. नेक्स्ट इज द initial public offer. It is normally called IPO. So meaning is by making an offer inviting the public in general to subscribe to shares through the issue of prospectus is called initial public offer, IPO. यानी जब हम प्रविवरण के द्वारा आम जनता से अपनी प्रतिभूतियों के लिए आवेदन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे हम आरंभिक पब्लिक ऑफर या कहा जाता है. देयर इज सम प्रोसीजर ऑफ द इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं. अलॉटमेंट इज द allocation of shares to the successful applicant by the directors of a company. The applications for shares by the member of the public are called proposals. जब शेयर्स जनता के द्वारा दिया जाता है तो प्रपोजल या प्रस्ताव कहा जाता है अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. एंड प्रपोजल द पब्लिक मे बी एक्सेप्टेड इन फुल और रिजेक्टेड इन फुल और एक्सेप्टेड इन पार्ट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करना उस जिसको आप प्रस्ताव उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो पूरी तरह से एक्सेप्ट करे, पूरी तरह से निरस्त करे या आंशिक रूप से स्वीकृत करे और आंशिक रूप से निरस्त करे, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है. When an offer is accepted by the board of directors, the successful applicants are sent letter of allotment. जब निदेशक मंडल जनता के ऑफर को स्वीकृत कर लेता है तो उसे आवंटन पत्र निर्गमित किया जाता है जिनमें उसको आवंटित किए गए अंशों की संख्या और अमाउंट आवंटन की राशि आदि के संबंध में पूरा विवरण दिया होता है. And those applicants whom shares could not allotted are sent letter of regret to them the refunds of application money. जिन आवेदकों को अंशों का निर्गमन नहीं किया जाता है उन्हें खेद पत्र के साथ उनके आवेदन की राशि को वापस कर दिया जाता है. Accounting treatment is same as according to the accounting treatment. The company may issue the shares under 2 modes. कंपनियां 2 तरह से अंशों का निर्गमन कर सकती हैं. पहला फॉर कैश और दूसरा फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, रोकड़ के बदले और अन्य प्रतिफल के बदले. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इश्यू, कंपनी कैन इशू शेयर्स और एनी वन बेसिस. So these are the initial offer.
Next is preferential allotment, अर्थात meaning the preferential allotment is that allotment in which a predetermined price is made to the pre-identified people who are interested in making a strategic stake in the company, such as promoters, ventures, capitalists, financial institutions, buyers of companies' product, or suppliers. Preferential allotment is made at a price which is much less than the market price. यानी जब भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया जाएगा इन लोगों को किया जा सकता है. Conditions for the allotment. The preferential allotment can take place only if 3/4 of the shareholders agree to the issue of preferential basis. SEBI has prescribed the manner for calculating minimum price of such an issue. Now the restriction of sales. In case of preferential allotment, the allottees shall not sell their shares in the open market for a minimum period of 3 years from the date of such allotment. This period is called lock-in period. So today's class is here. Next turn we are move some other topics and try to the meaning of the minimum subscription, issue of shares, accounting treatment. Okay, bye.